Hello everyone, welcome to my next video. So we were discussing in the last video regarding IV infusion, determination of pharmacokinetic parameters using plasma drug concentration. Today we will discuss about the urinary excretion rate method. To recollect the plasma drug concentration measurement, it was like the drug concentration uh, as the time increases, the concentration increases and it reaches the steady state concentration. This can be explained by dx upon dt is equal to rate of infusion minus rate of elimination, where x is equal to k naught upon k into 1 minus e to the power minus kt, and c is equal to k naught upon vk into 1 minus e to the power minus kt. These are the equation used according to the plasma drug concentration. Whereas for using urinary excretion rate, we know already the urinary excretion rate can be written as dxu upon dt, which is urinary excretion rate is equal to ke into x. It is proportional. The urinary excretion rate is proportional to the amount of drug that is present in the body. कितने अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से आपका यूरिन में ड्रग एक्सक्रीट होगा. सो dxu अपॉन dt इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी. इक्वेट करेंगे तो जो कांस्टेंट आता है विच इज नोन एज यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट का कांस्टेंट होता है. सो इस x को लाइक प्रीवियस इन आईवी इंजेक्शन में भी x को क्या लिखते थे, x नॉट अपॉन e टू द पावर माइनस के टी, बट इसके हिसाब से x वैल्यू ये होता है. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x हियर. सो dxu upon dt is equal to ke k naught upon k into 1 minus e to the power minus kt. Now to determine the amount, cumulative amount of drug that is excreted in urine, you have to integrate this term, that is xu is equal to ke k naught upon k into t minus ke k naught upon k square into 1 minus e to the power minus kt upon what it has to be integrated. Integration of the previous equation, it will give dxu को integrate करेंगे तो xu मिलेगा, इस term को integrate करेंगे तो ke k naught upon k into t पहले का, और ke k naught upon k square into 1 minus e to the power minus kt मिलेगा. And when the steady state will be reached, the time will be equal to infinity. टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये t को इन्फिनिटी कर देंगे. t इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये टर्म में ये टर्म हट जाएगा. सो एट CSS xu इज इक्वल टू ke k नॉट t अपॉन k माइनस ke k नॉट अपॉन k स्क्वायर. वो दूसरे टर्म तो 1 हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर लिया. कैसे होगा, when t is equal to infinity, e to the power infinity is equal to 1, सॉरी 0. सो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1 into this is this term आ जाएगा. सो यू हैव टू डिटरमाइन द k. सो k डिटरमाइन करने के लिए we take xu is equal to 0. इस टर्म को 0 कर देंगे तो this will be equal to this. ये हो जाएगा 0. 0 is equal to ke k naught t upon k minus ke k naught upon k square. सो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ke k naught t upon k minus इक्वल टू ke k naught upon k square हो जाएगा. तो ये जो ke k naught, ये ke k naught कैंसिल हो जाता है, तो k में ये k कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन k. सो हम प्लॉट करेंगे ग्राफ. कैसा प्लॉट करेंगे, क्यूमुलेटिव ड्रग कंसेंट्रेशन और टाइम को प्लॉट करेंगे तो यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन. ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जैसे है, तो आपको पहले कर्व और फिर लाइन मिलेगा. इसको क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर टाइप ऑफ ग्राफ. क्या कर्व, शुरुआत में कर्व एंड देन लीनियर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर ग्राफ बोलते हैं. इनिशियली कर्व एंड देन इट इज लीनियर, उसको क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर ग्राफ बोलते हैं. सो ये कर्वी लीनियर ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो इक्वेशन में हम क्या, कर्वी लीनियर मतलब ऐसे कर्व है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. जस्ट लेट मी टेक द डस्टर. सो ये ग्राफ को क्लियरली बना देती हूँ.
सो कर्वी लीनियर ग्राफ कैसा मिलेगा, इनिशियली आपको कर्व मिलेगा, देन स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो व्हेन यू एक्सट्रापोलेट दिस लीनियर सेगमेंट, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को हम स्केल रख के एक्सट्रापोलेट करेंगे, यहाँ पे एक्स यू क्या हो जाएगा, 0 का ले रहे हैं, तो t वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/k। सो ये इक्वेशन एक्स यू और t को करेंगे तो जो ग्राफ मिलेगा, जो लीनियर सेगमेंट को हम एक्स एक्सिस में एक्सट्रापोलेट करेंगे तो जहां जाके मीट हो रहा है दैट वैल्यू इज 1/k। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो k वैल्यू निकल जाएगा। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यूरिन एक्सक्रीशन रेट मेथड, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट मेथड से भी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कल हम डिस्कस किए थे और इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आईवी इन्फ्यूजन, जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन यूज करके के वैल्यू निकालना है। जैसे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन यूज करके आईवी इन्फ्यूजन चलते चलते ड्यूरिंग इन्फ्यूजन एंड ऑल्सो आफ्टर स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, ये दोनों मेथड से डिस्कस किए थे। आफ्टर स्टॉपिंग भी, बिफोर अचीविंग सीएसएस एंड आफ्टर सीएसएस करके 3 तरीके से के वैल्यू निकाले थे। दिस इज फॉर द यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा यूज करके निकालने का मेथड हो गया। सो दिस कंप्लीट्स द आईवी इन्फ्यूजन, ये कंप्लीट हो गया आईवी इन्फ्यूजन। सो हम 2 चीज 1 कंपार्टमेंट मॉडल में कंप्लीट कर लिए, one is IV infusion and another is IV injection. Now third route of drug administration is extravascular route. extravascular route और intravascular route का क्या डिफरेंस है? इंट्रावेस्कुलर मतलब the drug is administered directly into the blood, whereas extravascular मतलब the drug is administered outside the blood and the drug has to absorb from the site of administration to systemic circulation। तो ये स्टेप भी इंक्लूड होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम आईवी देखे थे, आईवी इंजेक्शन में क्या किए, डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर किए और उसके हिसाब से ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ टाइम के हिसाब से। वेरएस आपका आईवी इन्फ्यूजन में क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते होते फिर स्टेडी स्टेट अचीव हो रहा है। यहाँ दोनों केसेस में आपको इट इज जस्ट एलिमिनेटेड, ड्रग एलिमिनेशन को कंसिडर कर रहे हैं, नॉट द एब्जॉर्प्शन कंसिडरेशन नहीं था। बट एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट पे हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो पहले ड्रग एब्जॉर्ब होना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होकर एलिमिनेट होगा। सो एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट में फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड इज एब्जॉर्प्शन, देन द ड्रग विल बी एलिमिनेटेड। तो 2 रेट कांस्टेंट यहाँ निकालना होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेट कांस्टेंट, यहाँ पे भी 2 एक ही रेट कांस्टेंट निकाले थे, दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। वेरएस आप एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट पे पहले स्टेप एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालना है, दूसरा रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालना होगा। So when the drug is administered through the extravascular, now what is the extravascular route? Any other route other than this intravascular, intravenous छोड़ के बाकी सब रूट को एक्स्ट्रावेस्कुलर कहते हैं। इवन द पैरेंट्रल रूट लाइक इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, सबक्यूटेनियस रूट हो गया, या इंट्रावेनस छोड़ के बाकी सब पैरेंट्रल रूट्स हो गया, ओरल रूट हो गया, बक्कल हो गया, रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, टॉपिकल हो गया, कोई भी रूट हम इंट्रावेनस छोड़ के जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। ये हर रूट में जहां साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से पहले ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है, दैट इज द ड्रग मस्ट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, द ड्रग मस्ट गेट एब्जॉर्ब्ड फर्स्ट देन द एलिमिनेशन। तो 2 तरीके से कांस्टेंट, यहाँ एब्जॉर्प्शन की वजह से भी एब्जॉर्प्शन वेरी हो सकता है और एलिमिनेशन की वजह से भी रेट चेंज हो सकता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट भी निकालना होगा एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी निकालना होगा। सो द ओवरऑल रेट बॉडी में जितना ड्रग अमाउंट का चेंजेस हो रहा है इसका किससे डिपेंडेंट होगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से भी डिपेंडेंट होगा और एलिमिनेशन की वजह से भी डिपेंडेंट होगा। सो द ओवरऑल रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट डिपेंड्स अपॉन absorption rate as well as elimination rate. So the change or the rate of change in amount of drug in the body when the drug is administered through the extravascular route depends upon the rate of absorption and rate of elimination. इसको क्या कहते हैं, rate of absorption बोलते हैं and इसको कहते हैं rate of elimination and this is overall rate. So overall rate किससे डिपेंडेंट होगा, एब्जॉर्प्शन रेट पे और एलिमिनेशन रेट पे डिपेंडेंट होगा इन केस ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। तो यहाँ पे देखो
अब तक हम देखे हैं सिर्फ एक ही रेट कांस्टेंट, आईवी इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन दोनों में सिर्फ एक ही कांस्टेंट निकाले, क्या था, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. सो चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन दैट के, इसलिए उसको डिटरमाइन किए थे. इन केस ऑफ इन्फ्यूजन में के नॉट भी था, बट रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज कांस्टेंट और हमें पता है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, तो के ही निकाले थे. बट यहाँ पे एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट पे देते हैं तो ड्रग पहले ब्लड में पहुंचना है, उसके बाद उसमें चेंजेस आना है. तो अब्सॉर्ब होने की वजह से भी चेंज होगा, अब्सॉर्ब होने की वजह से ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और एलिमिनेट होने की वजह से ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. दैट इज द ओवरऑल इफेक्ट. ओवरऑल चेंजेस हो रहा है. आप एक्स्ट्रावेस्कुलर रेट में देते हैं तो एब्सॉर्ब होते होते ब्लड में ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखे हैं. और एलिमिनेट होने की वजह से ड्रग कंसंट्रेशन या ड्रग का अमाउंट बॉडी में डिक्रीज होगा, इसलिए हम नेगेटिव साइन लिखे हैं. सो द ओवरऑल रेट इज डिपेंडेंट ऑन द एब्सॉर्प्शन रेट and elimination rate. So dx upon dt. Now to determine x value, x निकालते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना होगा. So you will get directly ka fx naught upon ka minus k into e to the power minus kt minus e to the power minus kat. इसको इक्वेशन नंबर 1 रख रहे हैं तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं. यहाँ पे बाकी सब तो हमें पता है, बट f इज दी बायोअवेलेबल फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन कितना बायोअवेलेबल हो रहा है, बायोअवेलेबल फ्रैक्शन मतलब इंट्रावेनस में जितने ड्रग दिए पूरे आपको ब्लड में दे दिए तो 100% बायोअवेलेबिलिटी है. बट एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट में देते हैं तो जहां पे एडमिनिस्टर किए वहां से ब्लड पूरा नहीं पहुंचता है. Only some fraction of the drug which has been administered will reach the systemic circulation unchanged form पे. तो कुछ चीज आपका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म में, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ऐसे बहुत सारा चीजों की वजह से ड्रग पूरा नहीं पहुंच पाता है. तो यू हैव टू कंसिडर दिस एफ वैल्यू. एफ वैल्यू बाकी दो में क्यों नहीं आया, बिकॉज एफ विल बी इक्वल टू 1. परसेंटेज में मैक्सिमम 100 बोलते हैं, फ्रैक्शन में मैक्सिमम 1 बोलते हैं. तो आईवी में मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी कितना है, 100%, और फ्रैक्शन में 1 बोल सकते हैं. सो 1 इंटू द सेम, वो 100% ही है इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में, तो एफ वैल्यू होगा तो भी 1 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 सेम वैल्यू आ जाता है. बट यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 से कम आएगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे करके होगा. इसलिए ये वैल्यू भी चेंजेस हो सकता है जब बायोअवेलेबिलिटी चेंज होगा. इसलिए यू हैव टू कंसिडर दिस parameter also, that is bioavailable fraction, that is f. So इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म आएगा x is equal to ka fx naught upon ka minus k into e to the power minus kt upon minus e to the power minus kt. ये देखो इधर दो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रखा है. नाउ इसका कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो c x को कैसे लिख सकते हैं, c इंटू v लिख सकते हैं, तो v इधर आ जाएगा. सो के एफ एक्स नॉट अपॉन v इंटू के ए माइनस के इंटू ई टू द पावर माइनस के टी माइनस ई टू द पावर माइनस के ए टी. ये कंसंट्रेशन का थर्ड टर्म आ जाएगा. जब भी हमें जो फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशंस लिखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन ऑफ द रेट. रेट किससे डिपेंडेंट होगा वो लिखना होगा. उसके बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना. रेट किससे डिपेंडेंट होता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन या और एक्सप्रेशन. फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके x निकालना है, दैट इज अमाउंट. फिर अमाउंट को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज द थर्ड स्टेप. अब कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे होगा इसका ग्राफ, टाइम और कंसंट्रेशन के. इनिशियली ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, पीक पहुंच जाएगा, फिर ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. दिस इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन. यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर, यहाँ रेट ऑफ एलिमिनेशन विल बी ग्रेटर, एंड हियर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन. इनिशियली ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट पे, एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा, एलिमिनेशन कम होगा, इसलिए आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. एक पर्टिकुलर पीक, जहां पीक दिख रहा है जिसको सी मैक्स बोलते हैं, जहां पे देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट इक्वल हो गया, तो पीक पहुंच गया. उसके बाद पीक के बाद क्या होगा, एलिमिनेशन रेट फर्दर प्रोसीड होने लग जाएगा, एक्सीड होगा एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, तो आपका कंसंट्रेशन, एलिमिनेशन ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाता है. सो वी आर गेटिंग अ 2 एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स. यहाँ पे देखो 2 एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है. सो दिस इज द ग्राफ एक्सप्लेनिंग e टू द पावर माइनस के टी, एंड दिस इज एक्सप्लेनिंग e टू द पावर माइनस के टी. एब्जॉर्प्शन रेट के लिए एक और एलिमिनेशन रेट के लिए
एक एक्सपोनेंशियल टर्म, तो इसलिए दो कर्व मिल रखा है यहाँ पे, तो इक्वेशन में दो एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व हो रखा है। नाउ दिस पहले ही बोले थे एब्जॉर्प्शन रेट इज सो फास्टर देन दैट ऑफ एलिमिनेशन रेट इनिशियली एंड दिस विल अप्रोच टू जीरो, इतना फास्ट हो जाता है ये जीरो अप्रोच हो जाता है, then the equation will reduce to ka fx naught upon b into ka minus k into e to the power minus kt। इस केस में क्या हो जाएगा, आपको इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। सो ये जो इक्वेशन है आपका एलिमिनेशन e टू द पावर माइनस kt को एक्सप्लेन करने का जो टर्म है, ये जो एलिमिनेशन का कर्व है ये एक्सप्लेन करता है। नाउ कन्वर्ट दिस लॉग, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो log c इज इक्वल टू log ऑफ ka fx naught upon v into ka minus k minus kt upon 2.303। now you have a straight line equation और सेमीलॉग प्लॉट में कंसंट्रेशन टाइम को प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसके स्लोप से k अपॉन 2.303 से k निकाल सकता है और इंटरसेप्ट है ये पैरामीटर मिल जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k निकाल दिए, एक रेट कांस्टेंट तो निकाल दिए, दूसरी रेट कांस्टेंट है ka क्या है, दूसरे रेट कांस्टेंट होता है, दिस इज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालना है तो डायरेक्टली यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, सो वी हैव टू यूज डिफरेंट टर्म्स। वन इज मेथड ऑफ रेसिडुअल्स, के ये डिटरमाइन करने के दो मेथड्स होता है, वन इज मेथड ऑफ रेसिडुअल्स, वन कंपार्टमेंट मॉडल में के ए कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय अनदर मेथड विच इज नोन एज वैगनर-नेल्सन मेथड। क्या बोलते हैं, Wagner-Nelson method or method of residuals. I'll explain about the method of residuals today. In my next video, we'll discuss about the Wagner-Nelson method. So method of residuals के हिसाब से देखेंगे तो this is if it is equation number 5. See, आप ये जो कर्व में देखेंगे तो ये जो सेगमेंट एलिमिनेशन होता है दिस इज लीनियर सेगमेंट। लॉग में आप प्लॉट करके देखेंगे तो ये तो कर्व जैसा होगा, ये लीनियरली आपको कनेक्ट होगा। सो ये लीनियर सेगमेंट को ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे y एक्सिस में, दिस इज एक्स्ट्रापोलेटेड करके y एक्सिस में रख लिए एंड दिस कंसंट्रेशन जो है ट्रू कंसंट्रेशन होगा एंड दिस कंसंट्रेशन और एक्स्ट्रापोलेटेड कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन ट्रू है, ये एक्स्ट्रापोलेटेड है, ये ट्रू है, ये एक्स्ट्रापोलेटेड है। इसी तरीके से दो तरीके से कंसंट्रेशन निकलेगा। सो ट्रू कंसंट्रेशन का जो इक्वेशन देखेंगे तो दैट इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज c इज इक्वल टू ka fx naught अपॉन, इसको ट्रू कंसंट्रेशन बोलते हैं, fx naught अपॉन v इंटू ka माइनस k इंटू e टू द पावर माइनस kt माइनस e टू द पावर माइनस kat, इसको ट्रू कंसंट्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में लिखे हैं। नाउ यू हैव टू राइट द एक्स्ट्रापोलेटेड इक्वेशन। एक्स्ट्रापोलेटेड इक्वेशन किससे एक्स्ट्रापोलेट करना है, एक्सपोनेंशियल में, उसमें आपका एब्जॉर्प्शन टर्म नहीं है तो e टू द पावर माइनस kat ये नहीं आएगा, विच इज ka fx naught, जो इसमें आप निकाले थे इक्वेशन नंबर 4 यूज करके निकाले थे, ये इक्वेशन हो जाएगा ka माइनस k इंटू ई टू द पावर माइनस kt। ये सिर्फ एलिमिनेशन फेज को एक्सप्लेन करता है, अब्जॉर्प्शन फेज छोड़ के। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द रेसिडुअल कंसंट्रेशन। रेसिडुअल कंसंट्रेशन मतलब ट्रू कंसंट्रेशन को ये जो एक्स्ट्रापोलेटेड कंसंट्रेशन से दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे एक लाइन आएगा, इसको बोलते हैं क्या कंसंट्रेशन, रेसिडुअल कंसंट्रेशन। तो रेसिडुअल कंसंट्रेशन से हम निकालते हैं ka का वैल्यू, तो इसलिए इसको मेथड ऑफ रेसिडुअल्स बोलते हैं। सो रेसिडुअल कंसंट्रेशन कैसे निकालना है, इक्वेशन 4 have to be subtracted from equation 3, that is residual concentration is equal to fx naught upon v into ka minus k into e to the power minus kt। अब इसको माइनस करना, माइनस ऑफ e to the power minus kt, ये प्लस हो जाएगा प्लस e to the power minus kat, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच रहा है ka fx naught upon v into ka minus k into e to the power minus kat। अब ka आ गया, now take log on both sides, log cr is equal to log of ka fx naught upon v into ka minus k माइनस kat अपॉन 2.303। अब टाइम और कंसंट्रेशन, रेसिडुअल कंसंट्रेशन का हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उसके स्लोप से हम ka निकाल सकते हैं। सो वी हैव डिटरमाइंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एज वेल एज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डायरेक्टली निकालेंगे नहीं,
व्हाट मेथड वी यूज, मेथड ऑफ रेसिडुअल्स। मेथड ऑफ रेसिडुअल्स यूज करने का यही है, इफ यू हैव टू और मोर देन टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन दिस इक्वेशन, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है तो डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इफ यू हैव टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स और टू कांस्टेंट्स, टू डिफरेंट कांस्टेंट होगा तो मेथड ऑफ रेसिडुअल्स से रिजॉल्व करना होगा दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इसी तरीके से। सो वी हैव डिटरमाइंड द रेसिडुअल कंसंट्रेशन बाय सबट्रैक्टिंग एक्सट्रापोलेटेड कंसंट्रेशन फ्रॉम ट्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। दोनों को सबट्रैक्ट करके हमें जो मिलेगा रेसिडुअल कंसंट्रेशन, उसका लॉग में से अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के ये निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड है के निकालने के लिए, दैट इज वैगनर-नेल्सन मेथड, that we will discuss in my next video. Also the pharmacokinetic parameters and the urinary excretion method for extravascular route will be discussed in the नेक्स्ट वीडियो। सो मैं पहले भी बोले थे, कोई भी डाउट्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स, है ना। तो बस समझने का देर है, समझ गए तो बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, you can get clarified from me at any time. Okay, thank you.